चिंता मत करो, इंटीग्रेशन बात जब कराएंगे ना यहाँ पे बहुत सॉलिड हो जाएगा फिर, ठीक है। डोंट वरी। सो लास्ट टाइम ने लिमिट्स का किया था, लिमिट्स में आई गेव यू द रिजल्ट्स आल्सो, देन आई टोल्ड यू द दैट L'Hopital rule as well. Now, sometimes you come across limits which are the type 1 to the power infinity types. या पहले limits tending to infinity करते हैं. We know that 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 1 to the power infinity, all these are indeterminate forms, right? So suppose there's a limit which is extending to infinity, ax square plus bx plus c divided by px square plus qx plus c types. तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लिमिट डालेंगे. द मोमेंट यू सब्स्टिट्यूट लिमिट, it will be infinity square, which is infinity plus infinity plus some constant is also infinity. So this is infinity by infinity form. If you substitute the limit, it is infinity by infinity form. Divsha, Yes, sir. good to see you. Thank you. कैमरा ऑन करो. तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? विल टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन, या डिवाइड कर लो. या तो हाईएस्ट पावर ऑफ x से जो कि न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में है, उसको डिवाइड करो या कॉमन ले लो, ठीक है. डिवाइडिंग बाय हाईएस्ट पावर ऑफ x, the term which is containing the highest power. So in the numerator and denominator, we have highest power as x square. To divide numerator by this, common भी ले सकते हैं, the same thing. And in the denominator also, bx square plus qx plus c divide by x square. ऊपर नीचे highest power वाली term से divide कर दिया. Dividing by the term which contains the highest power of x. So this would be limit extending to infinity. Now individually divide कर दो. X square by x square plus bx by x square plus c by x square divided by px square by x square, qx by x square and c by x square. So इसके बाद ये क्या हो जाएगा? a plus b by x plus c by x square. And here we have p plus q by x plus ये r था ना, r by x square. So once you have divided numerator and denominator by x square, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर लिमिट तुम्हारा पक्का हो गया तो डिफरेंशियबिलिटी भी इजी हो जाएगा और कंटिन्यूटी भी इजी होगा, ठीक है. डिफरेंशियबिलिटी और हाँ, तो एनी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी हमेशा जीरो होता है. सो यू गेट सम फाइनाइट आंसर. सो दिस वुड बी a plus 0 p plus 0 plus 0, that is a by b. So that is a conventional method of finding limits when the limit is tending to infinity. ठीक है. अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, जब भी लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी होती है तो हम क्या कर सकते हैं? एल'हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं. व्हाट इज एल'हॉपिटल रूल? डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर इंडिविजुअली. द क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन में. तो सेम क्वेश्चन यू कैन आंसर बाय, कहाँ पे? पी क्यू आर था ना ये.
हाँ वो गलती से मिस्टेक हो गई थी। So same questions, whenever limit is 0 by 0 or infinity by infinity, we can also use L'Hopital rule. तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को L'Hopital रूल से यूज करूं तो क्या होगा? So we'll differentiate numerator. When you differentiate numerator, it will be 2ax plus b, and this will be 2px plus q. अगर लिमिट डालोगे तो वापस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, है ना? अगेन यूज L'Hopital रूल. तो वापस L'Hopital रूल कर लो. तो वापस डिफरेंशिएट करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. So after using L'Hopital again, it will be extending to infinity. This would be 2a by 2p. The answer is a by p. हाँ, अलग अलग. न्यूमरेटर का फंक्शन अलग से करोगे, नीचे वाला अलग से करो. क्वेश्चन रूल यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है? सो व्हेन यू वांट टू यूज L'Hopital रूल, till you get finite answer, ठीक है? But you can use L'Hopital rule as long as it's 0 by 0 form or infinity by infinity form. अगर मान लो infinity by infinity form नहीं है तो L'Hopital यूज नहीं लगे होगा. 0 by 0 नहीं तो L'Hopital नहीं यूज करोगे, ठीक है? हाँ बट वी, आई मीन प्रोनाउंसिएशन L'Hopital है, बट हम इसको एल हॉस्पिटल देसी भाषा में बोल सकते हैं. डी ब्रोगली होता है ना, वो डी ब्रॉय है वैसे. डी ब्रोगली वेवलेंथ था. तो बेचारा नाराज होता होगा. होने तो, हम तो हिंदी बोलेंगे ना, हिंदुस्तानी तो हिंदी बोलेगा. क्या अच्छा, मजा आया? तो तुम डायरेक्ट मूवी देखी, बॉलीवुड मूवी देखी तुमने कोई धुरंधर है मजा? अरे पढ़ा है, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ पूरे. चार ही तो, हाँ 4 लोग मर गए ना. टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया. हाँ हाँ फिजिकल. ऑनलाइन तो आई हेट. आई डोंट लाइक ऑनलाइन थिंग्स. हाँ. हाँ बट बहुत. हम्म. तो तुम उसको रिकॉर्ड कर लेती, मूवी बन जाती अच्छी खासी. ये आ गया, सब कुछ समझ में, आगे बढ़े अब. अनुष्का, डन. और डन। मजा आ रहा है मुंबई में तो, इट्स रेनिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स. सर अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। ओहो. यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है गुड़गांव में वैसे. अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 या 3, उनको तुम्हें सॉल्व करना है. फाइंड द लिमिट. फाइंड लिमिट इन ईच केस. You can use L'Hopital only and only if it's infinity by to differentiate. If limit is 0 by 0 or infinity by infinity, differentiate the numerator. इसको differentiate कर दिया. And differentiate the denominator. Put the limit. अगर वापस infinity by infinity आ रहा है, दोबारा से L'Hopital लग जाएगा.
फर्स्ट में। हम्म। लिमिट तो लिखो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। टेस्ट दिया तुम्हें फिजिक्स का आज? अगर तुमने ट्यूसडे तक टेस्ट नहीं दिया तो आई मार्क यू एब्सेंट, ठीक है? सब लोगों ने दे दिया। हम्म। लास्ट वाला भी या तो तुम एल हॉपिटल, अभी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। देखो, ये वाला, इससे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके देख लो या फिर डिफरेंशिएट कर लो। तुमने एलोपिटल यूज किया है, ठीक है? एलोपिटल यूज करोगे तो क्या आ रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इज 6x माइनस 5, है ना? व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर यू कैन यूज प्रोडक्ट रूल, विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, यही आ रहा है। अभी भी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अगेन यू कैन यूज एलोपिटल रूल, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो 6 डिवाइड बाय एल बी 2, एल बी 2। तो आंसर इज 6/4, दैट इज 3/2। यही आंसर है फर्स्ट का, एलोपिटल यूज कर लिया। सेकंड वाले में क्या हो रहा है? या तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लो, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड करो, अदरवाइज एट दिस मोमेंट इट इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, so you can differentiate the numerator. So limit extending to infinity will be 3x square plus 0. This would be 4x plus 0। ये अगर अभी कैसे कर लोगे, रुको तो सही ना। इट इज 3x/4 आ रहा है अभी ये। अब लिमिट डालने पे इट्स नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इस कौन सा? अच्छा सॉरी। हाँ हाँ sorry, ठीक है, नाराज मत हो। तो अभी इस मोमेंट पे लिमिट डालेंगे, इट इज नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इट्स इन्फिनिटी। मतलब लिमिट इज नॉट डिफाइंड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? और लिमिट इज नॉट डिफाइंड। अब ऐसा क्यों हो रहा है? whenever you have a question of limit tending to infinity and the index of numerator is more than that of denominator, limit will not exist। लिख लो नोट करके साइड में। 3x² का डेरिवेटिव कितना हुआ? हाँ तो ये मेरे को उन्होंने गलती करा दी ना मेरे से। डिफरेंशिएट थोड़ी किया है, 3x/4 ही तो हुआ ये। इसको डिफरेंशिएट थोड़ी किया है, हमने x कैंसिल किया है। तो अब बिकॉज यू कांट डिफरेंशिएट ना, क्योंकि इन्फि हाँ तो कर लो तब भी वही आएगा, इन्फिनिटी आंसर आंसर आएगा ना। तो वेन लिखो, इफ लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, इफ लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी and index of x power of x in the numerator, power of x in the numerator is more than that in the denominator, is more than that in the denominator, then limit does not exist, limit does not exist। ये क्लियर हो गया? अब लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में क्या हो रहा था। लास्ट पार्ट में अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इफ आई अप्लाई
L'Hopital rule will be 2x plus 6 divided by 8x cube प्लस 10x, है ना? अभी कौन सा फॉर्म है ये? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगेन, वापस एल ऑर्बिटल लगा दो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज 2 डिवाइड बाय 16x² प्लस 10। हाँ, तो अभी नाउ एट दिस मोमेंट इट्स नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इस स्टेज पर अगर तुम लिमिट डालोगे, इट इज नॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, यू हैव टू पुट द लिमिट। तो लिमिट डालने पे क्या आ रहा है? 2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी विच इज 0। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। जब भी, अरे इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू 24 भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है? इन्फिनिटी समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसके आगे पहले एक बार ये लिख लो, फिर इसका रिजल्ट भी लिखेंगे। ये सारे रिजल्ट्स वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस काम आएंगे हमारे बहुत। लिमिट लिखा करो इस स्टेज पे। लिखो, व्हेन लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी। देविका, तुमने पुरानी क्लासेस देख ली सारी? Yes, sir. ओके। व्हेन लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एंड index of x in the denominator, index of x in the denominator is when limit tends to infinity and index of x in the denominator is more than index of x in the denominator is more than that in numerator, is more than that in numerator. Limit exists, limit exists and it is equal to 0. Limit exists and it is equal to 0. तो अब क्या होगा? पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का इंडेक्स क्या था? इक्वल था। तो उसमें लिमिट फाइनाइट थी एंड नॉन जीरो थी। इसमें थर्ड वाले केस में क्या है? लिमिट फाइनाइट तो है बट ये जीरो है। तो जब भी क्वेश्चन में आएगा दैट लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, इसका मतलब इंडेक्स ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो साइड में नोट करके। whenever whenever limit tends to infinity, whenever limit tends to infinity and limit is limit is finite and non-zero, limit is finite and non-zero, limit is finite and non-zero, then limit is finite and non-zero, then index of x, index of x in the numerator and denominator has to be equal, has to be equal. अपकमिंग संडे या सैटरडे तुम्हारा टेस्ट है ना मैथ्स का, क्वाड्रेटिक का? ठीक है, क्लास नोट जरूर कर लेना। जो क्लास नोट्स कर लेगा उसका बेड़ा पार। यस। नहीं नहीं, तो सिमिलर क्वेश्चन भी तो आएंगे, और भी तो क्वेश्चन आएंगे, सारे वही थोड़ी आएंगे इसलिए में। और जो नहीं पढ़ेगा, मतलब जैसे इसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कर लिए लेकिन क्लास वाले नहीं करे, तो दोनों करने, एक्स्ट्रा भी करो, क्लास वाले पहले, प्रायोरिटी पे क्लास वाले करो।
इट इज MSQ। IT एडवांस MSQ आते हैं, मल्टी करेक्ट। सेलेक्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो मैं लिमिट डालनी है। लिमिट डाल के देखो क्या हो रहा है। 0/0 आ रहा है, तो इधर यू कैन रैशनलाइज और यू कैन यूज एल हॉपिटल रूल। कन्वेंशनल मेथड है रैशनलाइज करके करो। अगर तुम्हें वो नहीं यूज करना तो एल हॉपिटल यूज कर सकते हो। तो एल हॉपिटल लगाओ। ए इज मोर देन 0, ए इज अ पॉजिटिव नंबर। ऑप्शन भी जरा देख लो, उसने पूछा है क्या है। उसने दिया हुआ है लिमिट इज फाइनाइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इस क्वेश्चन के लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो या तो ये 0/0 फॉर्म रहेगा हर स्टेज पे, या इट विल बी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, देन ओनली लिमिट वुड एग्जिस्ट। सो खा लो पहले एक बार। ये क्या किया, ये तो आएगा एज इट इज। अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव भूल गए तुम, क्या होता है? पहले खा लो उसको, फिनिश करो। ये लिखवाया था ना मैंने, अब -x/√f(x), ये यूज करोगे, करो। तो सिंस लिमिट डालने पर 0/0 फॉर्म आ रहा है, वी हैव टू अप्लाई एल हॉपिटल। डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ एक्स will be f' x by 2√f(x). एलॉपिटल में डिफरेंशिएट नहीं करोगे इसको? ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है रेडीमेड। अगर कोई हाँ तो प्रॉपर कर लो। हाँ तो सही किया होगा तुमने, प्रॉपर किया है तो। थोड़ी सी गलती हो गई बस, बिकॉज x/2 क्यों आएगा, 2x आएगा ना। तो फिर इसका चेन रूल नहीं, 2x नहीं करोगे? तो जैसे मैं यहाँ पे इसको यूज करना चाहूँ डेरिवेटिव के लिए, बिकॉज अभी भी हमने डेरिवेटिव नहीं किया ना, तो पहले f', ये f(x) है अंदर वाला, तो ये जाएगा -2x डिवाइड बाय 2√f(x), ये आना चाहिए डेरिवेटिव। -2x/2√a² आएगा। वो तो बाद में प्लस हो जाएगा। सो ए का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2x/4, है ना, और 4x³ इस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन आ रहा है ना ऊपर से, x कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो। x³ से x कट जाएगा, x² बचेगा। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, देखो जरा। आर्यमन, बहुत दिन बाद नजर आए हो तुम आज क्लास में। नजर तुम अभी भी नहीं आ रहे, वैसे कैमरा ऑन कभी तुमने किया नहीं, बट यू आर देयर इन द क्लास। नहीं। ये कैमरा शाही कैमरा ऑन नहीं करता कभी। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब लिमिट डालो इस स्टेज पे एक बार वापस से। 1 मिनट आ रहा हूँ।
अगर इस स्टेज पे लिमिट डालोगे तो क्या आ रहा है? इस स्टेज पे लिमिट डालने पे आ रहा है 1/a माइनस 1/2 डिवाइड बाय 0। यही आ रहा है। इस स्टेज पे अगर तुम लिमिट डालोगे तो ये आंसर आ रहा है। तो दिस इज समथिंग बाय 0। इसका मतलब अगर ये जीरो, या तो ये जीरो हो सकता है वैल्यू, या नॉन जीरो हो सकता है। लिमिट डाल दी, कट गया, कॉमन लेके काट दिया। तो हाँ, हाँ। तो अगर इस स्टेज पे ये वैल्यू सम फाइनाइट नंबर होगी, नॉन जीरो नंबर होगी, तो सम फाइनाइट नॉन जीरो नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट फाइनाइट है। इसका मतलब ये नॉन जीरो नहीं हो सकता। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए इट शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज एज लॉन्ग एज जीरो बाय जीरो फॉर्म, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिंस लिमिट इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, इट शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट कर दूं। हाँ। तो सिंस लिमिट लिख भी लेना है, सिंस लिमिट इज फाइनाइट, इट शुड बी जीरो बाय जीरो फॉर्म। तो इससे हमारा एक ही वैल्यू आ गई, एक आंसर हमारा आ चुका है। देखो, अगर ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नंबर होगा। ये वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं होगी तो कुछ नंबर होगी ना, नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर बाय जीरो कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो लिमिट नॉट डिफाइंड हो गई, पर लिमिट तो फाइनाइट है, डिफाइंड है, तो जीरो होना चाहिए। हम्म। अब ए को टू डाल दो और इसको वापस सिंप्लीफाई करो। तो लिमिट एक्सटेंडिंग, हाँ। आंसर कहाँ है? पूरा लिमिट भी तो निकालनी है। एल भी फाइंड कर, MSQ है ये। हाँ, एक की वैल्यू टू आ गई ना, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया। अगर तीन गलत हुए एक सही हुआ तो? ऐसा नहीं होता। तो अभी तुम पढ़ लो, अभी क्वाड्रेटिक का टेस्ट आने वाला, फिर डिप्रेशन में चली जाओगे तुम। ये आ गया। इसमें अगर यहाँ पे तुम लिमिट डालोगे तो क्या आएगा? लिमिट, ऊपर भी जीरो आ रहा है। लिमिट डालने पे ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो यहाँ पे स्टेज पे या तुम रैशनलाइज करके सॉल्व कर लो, या एल हॉपिटल रूल लगा लो। हाँ, लिमिट कैसे निकाल, लिमिट फाइंड करनी है ना, एल की वैल्यू। तो इधर यू कैन रैशनलाइज और यू कैन यूज एल हॉपिटल, करो जिससे भी करना है। क्या? हाँ, तो अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है ना। तो एज लॉन्ग एज जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तुम्हें न्यूमरेटर वाले टर्म को इसको ऊपर लाना होगा ना। ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूमरेटर। तो करो डिफरेंशिएट, क्या आ रहा है? सो दिस वुड बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो -1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2, चेन रूल से -2x, हाफ का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाई 8x। ये आ रहा है। और क्या कैंसिल हो रहा है अब? एक्स से एक्स काट दो, -1/2 से -2 कट जाएगा। अब लिमिट डाल दो इसमें अब। हम्म। हम्म। तो लिमिट डालने में क्या आ रहा है ये? 4 to the power -3/2 डिवाइड बाई 8। तो 1/8, 4 को तुम लिख सकते हो 2² to the power 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 2³ इज 8, 1/64। A and C are the answers.
हम्म 3/2 है तो 2 कट गया ना. 3 is 8. 8 into 8 कितना? Whenever it's 0/0 or infinity by infinity. Whenever it's 0/0 or infinity by infinity, we can use this. ये कन्वेंशनल मेथड से भी हो सकता था ना ये रहा. This time limit is tending to infinity. हाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वो तो हो जाएगा. हम्म हाँ पहले एलसीएम लो एक बार. फिर लिमिट डालो. लिमिट में ऑलरेडी दे रखी है इक्वल टू 4, मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इज इक्वल टू 4. इस क्वेश्चन में लिमिट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड इट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट. वो 4 ऑलरेडी दिया हुआ है. तो हमने तीन जो कॉन्सेप्ट लिखी थी उसमें देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. व्हेन लिमिट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट. बस वही अप्लाई कर दो. हम्म अब लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी है, नॉन जीरो और फाइनाइट है. इसका मतलब पावर ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज टू बी द सेम. हम्म तो एक्स की जो पावर नीचे है वही ऊपर होनी चाहिए, तभी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट होती है. सीधा एलोपिटल कैसे कर लोगे? एक्स स्क्वायर की टर्म क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर की टर्म 1 - है ना. मैंने एक्स स्क्वायर की टर्म अलग लिख दी, सिंप्लीफाई कर लिया बेसिकली. एज लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, इंडेक्स ऑफ इन द एक्स इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हैज टू बी इक्वल. मतलब कहने का ये हुआ कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होनी चाहिए. लिख लो. एज लिमिट इज फाइनाइट, सिर्फ एक्सेल है. एज लिमिट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, एज लिमिट इज फाइनाइट, ब्रैकेट में लिख लो इक्वल टू 4. Index of x in the numerator and denominator, index of x in the numerator and denominator has to be the same. That is
टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो। देखो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वो कैसे नहीं होगा? जब ये जीरो होगा। ए को जीरो कैसे मानोगे? एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो होना मांगता है। दैट इज ए इक्वल टू वन आ गया। द मोमेंट ए इज वन, इसका मतलब कौन से ऑप्शन रूल आउट हो गए? ये दोनों गए। नाउ अगेन चांस पे डांस कर सकते हो तुम अब तो, या फिर सॉल्व कर लो फर्दर। वो ए की वैल्यू वन है। अब ए को वन डालो, ए को पहले वन डाल दो। ए को वन डालो, क्या आ रहा है? एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस बी एक्स। ये भी कट गया। अब ये लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया ना, तो एल ऑपरेटर लगा सकते हो, या ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो नाउ आई कैन अप्लाई एल ऑपरेटर हियर। तो कितना आ रहा है? ये जीरो माइनस जीरो बाय वन। तो बी इक्वल टू माइनस फोर आ गया। आंसर इज वन कॉमा माइनस फोर। यार, हम्म। पर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एल इक्वल्स टू 1/64, मैंने रेशनलाइजेशन से ट्राई करा, वो नहीं आ रहा फिर। आएगा। वो गलती से मिस्टेक हुई हुई कहीं पे, सेम आएगा। यहाँ तुमने रैशनलाइज किया होगा ना स्टेज पे। ये सर। अगर तुम उसको रैशनलाइज करोगे तो आएगा लिमिट, एक्सटेंड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वन ओवर फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर इंटू, ये पॉजिटिव था, वन बाय दिस प्लस हाफ, ये आ रहा है। इस वाले, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक टर्म, इसका न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? फोर माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय फोर एक्स स्क्वायर इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू फोर, सॉरी, इंटू दिस टर्म एज इट इज। ये आएगा। तो फोर से फोर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब तुम लिमिट डाल दो। तो जब तुम लिमिट डालोगे इसमें, ये रैशनलाइज करके किया ना सेकंड पार्ट, वो हमने एलोपेटल से कर लिया था। तो शी डिड बाय एलोपेटल रैशनलाइज करके, तो उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर को जीरो डालोगे तो पहली टर्म क्या बन गई? फोर इंटू फोर इंटू फोर, ठीक है। और इसमें जब जीरो डालो तो क्या आ रहा है? हम्म। ये हो जाएगा वन ओवर वन बाय टू प्लस वन बाय टू। तो वन बाय सिक्सटी फोर आ गया। तो मैथ्स का ये फायदा है, टू प्लस टू हमेशा फोर ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। हिंदी की तरह एक और एक ग्यारह नहीं होगा कभी, नहीं। एक और एक ग्यारह होता है मुहावरा। तुम समझते नहीं मुहावरा क्या है? कैसे हिंदुस्तानी हो तुम लोग, हाँ? तो द आंसर वुड बी द सेम। हम्म। माइनस था। हम्म।
ये मैथ्स का है, लिमिट्स का। फिर तो हंसी नहीं आई। तो पहले लिमिट डाल के देखो क्या हो रहा है। माइनस साइन है, माइनस साइन है, कॉस का डेरिवेटिव ना। नहीं, कॉस एक्स कॉस जीरो इज वन। कॉस एक्स बाय एक्स नहीं होता, सिर्फ कॉस एक्स होता है वो। नहीं नहीं, कॉस। पहले लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। जीरो बाय जीरो नहीं आ रहा, तो एल ऑपरेटर लगा दो। चेन। प्रोडक्ट क्यों करोगी? कहाँ है प्रोडक्ट? वो गुमराह कर रही है तुम्हें। उसका अरे उसका दिमाग ठंडा हो गया, उसने वो ठंडा ठंडा वो पिया है भाई। So the moment you substitute limit here, it will be sine zero, zero हो गया, and is also zero by zero form. Use L'Hopital rule, ठीक है? So when you differentiate numerator, derivative sin is cos. Chain rule use होगा, pi into cos square x. अब चेन रूल में जिसको तुमने x अज्यूम किया था उसका दोबारा डेरिवेटिव होगा, pi into cos square x का डेरिवेटिव करेंगे, and denominator would be 2x. So limit extending to 0, 0 था, so will be cos of pi cos square x, pi the constant है, cos square का डेरिवेटिव 2 cos x, और cos x का ये आएगा। ठीक है, किसी वे से करो आंसर तो वही आएगा। वन बनाएंगे ना, पहले नहीं बनाओ, अब बनाओ। दिस इज वन, टू से टू कट गया, लिमिट डाल दो। तो साइन एक्स बाई एक्स, ये क्या हुआ? नीचे तो 2x था ना, ये साइन 2x कहाँ से आया? मैंने ये वन कैसे हो गया? तो ये जीरो थोड़ी है। साइन एक्स बाई एक्स में एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए, पाई कॉस स्क्वायर एक्स इज नॉट जीरो। व्हेन यू अप्लाई दिस लिमिट, साइन एक्स by x is equal to 1, it is possible only and only if x tends to 0 होता है। ये वाली टर्म तुम्हारा x बन गया ना, ये 0 कहाँ हो गई? x को 0 डाल के तो पाई आएगा। हम्म। तो अब लिमिट डाल देते हैं, तो विल बी cos पाई cos स्क्वायर 0, तो 1 हो गया वो तो। दिस इज पाई, दिस इज cos 0, एंड दिस इज -1। cos पाई -1 होता है, cos 0 इज 1, आंसर इज पाई। इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो मान से माइनस पाई आ सकता है। वो यार है। बट Excuse आंसर, हाँ, me. बोलो। Uh, we can't write it minus sign 2x. माइनस साइन 2x कहाँ पर है? Sir, in the second step, 2 cos x minus sin x. हाँ, यू कैन राइट साइन 2x We can write माइनस। it minus sign 2. हाँ हाँ, दिस टर्म यू कैन राइट माइनस साइन 2x, एंड देन डिवाइड बाय दिस 2x विल बी अगेन 1। सर वापस 1 हो जाएगा, बात तो वही है। सर हम्म। मैंने ना कुछ अलग किया है। बताओ अलग कौन से, क्या है? तुमने ये तुमने तुमने ये किया होगा, cos पाई cos स्क्वायर एक्स बाय पाई cos स्क्वायर एक्स। हाँ,
नहीं। फिर मैं आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा हम्म दिखाओ और पास में लाओ। साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स किया, ठीक है। फिर पाई साइन स्क्वायर एक्स कर, हाँ ठीक है, ये बरोबर है। ये कन्वेंशनल मेथड से कर रही हो तुम, ठीक है। बट ये तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, नहीं तो वो तो गलत हो जाएगा। है। कॉमन लिया फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं नहीं, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय पाई कॉस स्क्वायर एक्स वन नहीं होगा। नहीं। दिस के नॉट बी इक्वल टू वन। वाई? बिकॉज ये टर्म जीरो थोड़ी हो रही है, दिस नॉट टेंडिंग टू जीरो। पाई साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस साइन स्क्वायर तुमने कैसे बना दिया? तो कॉस स्क्वायर था, तुमने क्वेश्चन चेंज कर दिया इसका मतलब। मैंने वन कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। हाँ तो फिर इसको वन, अगर तुम इसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा तुमने पहले कन्वर्ट किया। तो मैंने पाई माइनस थीटा लगा दिया। अच्छा तुमने ये किया पहले, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स किया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, है ना। हम्म। साइन पाई माइनस सीधा साइन थीटा, साइन पाई साइन स्क्वायर, अब सही है ये। अब तुम कर सकते हो, सही है। अब देखो दिस इज फाइन बिकॉज एक्स को जीरो डालने पे साइन जीरो बन जाता है ना। तो व्हाट शी हैज डन इज उसने पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। हाँ, इसने कन्वेंशनल मेथड से किया है, सही है, गुड। तो अब पाई साइन स्क्वायर एक्स ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये अब वन होगा। ये वन अब क्यों हो रहा है? बिकॉज एक्स जीरो डालने पे साइन जीरो हो जाता है, ये वन हो जाएगा। और फिर बाकी इसने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर, आंसर इज पाई, ठीक है। सही था ये। तो लिमिट्स यहाँ तक समझ में आ गई। समटाइम्स we come across limits which are like this: limit extending to whatever f of x raised to power g of x, इस टाइप की लिमिट होती है। और लिमिट डालने पे क्या होता है? f of a टेंड्स टू वन एंड g of a टेंड्स टू infinity, मतलब this limit is 1 to the power infinity. These questions are very popular. 1 to the power infinity types. तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? लिख लो एक बार इसको। Limits which involve 1 to the power infinity. Once 1 to the power infinity. Limits in which 1 to the power infinity, which are 1 to the power infinity types. Not defined होता ना ये भी। जिम गर्ल है ये, 200 उठा लेती है ये, 200 पता है उठा लेती है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है, सीधा मास्टर ब्लास्टर है हमारे पास। दिस यू कैन राइट इक्वल्स टू ई टू द पावर, लिमिट वही रहेगी एक्सटेंडिंग टू ए, अगर सपोज ये जीरो तो जीरो रहेगा, पाई है तो पाई रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ये इसका फॉर्मूला है सॉल्व करने का। सेम लिमिट को इस तरह हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है ये। मतलब दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू ई टू द पावर दिस। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना तो ऐसे करो, एक मिनट, दिस विल बिकम ई टू द पावर एल, वेयर, ऐसे याद करो, वेयर एल इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, इसका मास्टर ब्लास्टर है फॉर्मूला है ये। ये आएगा, यही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, बहुत इनवोग क्वेश्चन है, फैशन में है। तो अभी करेंगे ना, अभी तो तुम्हें रोने लगती हो पहले ही।
मतलब अभी कुछ बताया नहीं, पहले ही रोना शुरू कर दो तो कैसे पता लगेगा? नहीं, ये घड़ी देखना शुरू कर देती किसको उसको आगे बढ़ा दूं। मतलब जब भी कोई लिमिट 1 to the power infinity होगी, यू कैन, दैट क्वेश्चन वुड बी इक्वल टू e to the power l, वेर l इज दिस। ये लिख लो एक बार। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू से 0 tan x प्लस pi/4 होल रेज टू पावर 1/x। हम्म। तो पहले लिमिट डाल के देखो क्या हो रहा है। और नया फोन आ गया तुम्हारा? वही है? नया कैसे लग रहा है आज? पहले लिमिट डाल के देखो क्या हो रहा है। कैसे हो जाएगा 1/3? ई की वैल्यू नहीं, आंसर ई के टर्म में आता है अक्सर इसका। तो अगर हम इसमें लिमिट डालेंगे तो विल बी tan pi/4 विच इज 1, 1/0 इज इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है पहले आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज एफ एक्स एंड व्हाट इज जी एक्स? एफ एक्स इज दिस एंड जी एक्स इज 1/x। और फिर इसको मास्टर ब्लास्टर में सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ एक्स जी। मतलब द फॉर्मूला विच मेक्स योर लाइफ सिंपल। एल फाइंड कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या था? 0 वही रहेगा। एफ एक्स -1 अभी शुरू कर लेते हैं। tan x प्लस pi/4 -1 हो गया इंटू जी एक्स विच इज 1/x। 0 नहीं होगा ये, इट विल, इट इज नॉट 0, इट इज 0/0। तो जो क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी था वो 0/0 में कन्वर्ट हो गया है। अब 0/0 सॉल्व करना तो बहुत ईजी है हमारे लिए। या तो तुम tan की आइडेंटिटी से सॉल्व कर लो अगर टाइम पास करना है, और जल्दी करना है तो चल भाई हॉस्पिटल। से डिसाइड क्या करना है अनुष्का। यस। तो एल हॉस्पिटल लगा लो, ठीक है। डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर। 5/4 था ना? हम्म। हम्म। तो एल हॉस्पिटल अगर यूज, ये सिंस ये 0/0 फॉर्म है तो वी कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो tan का डेरिवेटिव एंड चेन रूल से इसका हो जाएगा 1 + 0 - 0। तो लिमिट डाल दो। सेक pi/4 था √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 आ गया। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता था पहले तो, अब चेंज हो गया है। हम्म। तो सेक pi/4 होता है √2। ये लिमिट का क्वेश्चन है, जी हमें आ चुका है एडवांस में बहुत पहले। तो एल की वैल्यू 2 आ गई, बट दिस इज नॉट द आंसर। पता है क्या होगा? इस क्वेश्चन के ऑप्शन में पहले ऑप्शन 2 दे रखा होगा। 50% लोग वही लिख के आएंगे 2 आंसर आ गया। आंसर 2 नहीं है, ई स्क्वायर है। बिकॉज ये आंसर होता है, आंसर इज ऑलवेज e to the power l।
टू भी ऑप्शन में दिया होगा तुम जैसे लोगों के लिए, जल्दी से टू मार्क कर दिया। यो ठीक है, समझ में आ गया, 1 to आगे बढ़े। अनुष्का, आर्यमन, देविका, दिव्शा, यद्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अब। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 माइनस क्वेश्चन ही भूल गया। चलो मैं याद कुछ और देता हूँ। सर कोई भैया बोलते तुम लोग। वो मेरे को याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। अभी मेरे को रिकॉल करता हूँ उसको। नहीं, चेक करो। पावर वाला जी एक्स होता लिखा तो है सामने राइट साइड में फॉर्मूला लिखा। वही ना, दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल। जंक फूड खा के दिमाग भी जंक हो गया इनका। अभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी है ये। इट इज 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर तुम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यूल फाइंड दैट अगर मैं एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं ब्रैकेट के अंदर तो क्या आ रहा है, ये 1 बन गया है ना। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है अभी। पहले एक्स कॉमन ले लोगे तो 1। हाँ ये लगेगा ना। तो ये तुम्हारा एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। हम्म। हाँ, तो अब इसको मतलब पता है क्या करते हैं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया ना, ये एलोपेट लगाओ तो एल की वैल्यू आ जाएगी। और ई टू द पावर एल इज योर आंसर। लिमिट इंटू एक्स से भी तो मल्टीप्लाई करोगी। अच्छा, एफ एक्स -1 कर लोगी। ये कैसे आ गया, 3x कैसे आ रहा है ये। अच्छा अच्छा, ये आ रहा है। एक मिनट। तो अभी इस मोमेंट पे इट इज 1 की पावर इन्फिनिटी है ना। एफ एक्स हमारा क्या है, x-3 ओवर x+2। जी ऑफ एक्स कितना है, x। एल विल बी लिमिट वही रहेगी, एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, f(x-1). हम्म। तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, x-3 माइनस x-2 डिवाइड बाई x+2।
तो -5x डिवाइड बाई x+2 आ रहा है। इस मोमेंट पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो एल ऑर्बिटल लगा दो या x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे x या एल ऑर्बिटल लगाएंगे तो क्या आएगा, -5/1। एल की वैल्यू आ गई -5। सो द आंसर वुड बी e⁻l e⁻−5। इसमें एक ऑप्शन -5 भी देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? यू ट्रैवलिंग टू स्पेस, एल ऑर्बिटल से मिल रही हो तुम। उसको ट्रैवल करने में मजा आता है, तो बता रहा हूँ कि तुम बोलो मैं एल ऑर्बिटल से मिल के आई हूँ अभी। इसमें लिमिट डालने के बाद क्या आ रहा है? अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन गलत हो गया ना ये। भाई वन आना चाहिए ना, तो मैंने इससे क्वेश्चन गलत बना दिया इसको। अरे जब तुम लिमिट डालोगे a⁻0 1, b⁻0 1, c⁻0 1, 3 - 3 तो 0 हो गया, जबकि 1 आना चाहिए। तो या तो मैं क्वेश्चन चेंज करूँ उसको, इसको आई राइट इट 2। तो शायद अब तुम कर पाओ इसको। अब ये 1⁻∞ हो गया। वही। तो इसमें लिमिट डालने के बाद इट्स कमिंग आउट टू बी 1⁻∞। तो f(x−g)x को कर लो। क्या है? क्या होगा तुम लोगों का? एक लिमिट होती है ये वाली भी, चाहो तो ये यूज कर लो। ये होता है, ये फॉर्मूला है। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, और x⁻a का डेरिवेटिव क्या होगा? हाँ, तो इसमें एल ऑर्बिटल लगा लो ना तुम। या फिर ये भी यूज कर सकते हो, कन्वेंशनल मेथड ये वाला। ये यहाँ तक पहुंच गए सब? तो दिस इज 0/0 फॉर्म। तो क्या करना है? चल भाई हॉस्पिटल। So when you apply L'Hopital rule, numerator would be a⁻x log a, right? b⁻x log b and c⁻x log c -0/1। बरोबर है? ये आ रहा है? अब हम लिमिट डाल देते हैं। तो a⁻01 b⁻01, 1 कहाँ से आ गया? अरे तुम कहाँ? ए एक्स की वैल्यू 0 डाल के log a प्लस log b प्लस log c आ गया। a⁻0 तो 1 हो गया ना, log a b c। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर क्या है? e⁻l।
अरे मूर्ख, x को 0 डाल दिया ना. तो दिस इज e to the power log abc, which is abc. इसका आंसर है abc. नहीं, लॉग कहाँ गया? भूल गई. प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, e to the power log fx to the base e is fx. ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत यूज होगा. हाँ. फिर अगर ऐसे ही कई बार भी लॉग लिखाओ तो फिर आप उसका बेस ई मानेंगे या फिर 10 मान सकते नहीं हैं? नहीं, बेस ई मानोगे, बिकॉज कैलकुलस में हमेशा नेचुरल लॉग होता है. आगे बढ़े. दिव्या. राइट. अब हम करते हैं वन साइडेड लिमिट्स. कंटिन्यूटी करेंगे ना अब. बिफोर कंटिन्यूटी, वन साइडेड लिमिट्स. So this is a function y is equal to f of x and x is equal to a पे मैं लिमिट फाइंड करना है. ठीक है. तो इफ यू अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट साइड, so left to the point x is equal to a, you'll have some number slightly less than x. A, sorry, it should be slightly less than a. H is always very very small positive number tending to zero. Remember this. H is always a very small positive number tending to zero. So this is called left hand limit. So left hand limit में हमेशा point से थोड़ा सा कम वैल्यू लेनी है. Left hand limit of a function would be always limit extending to a minus h f of x. And the second step will write limit h tends to zero. और जहां भी x आ रहा है उसको a minus h लिख देंगे. In some books you'll find zero, मतलब zero minus h. मतलब a अगर जीरो हुआ तो जीरो माइनस हो जाएगा. बट हम उसको पूरा लिख के सॉल्व करेंगे, गलती नहीं होगी कभी भी. हाँ. RHL, if you approach from this side, मतलब this time it is slightly more than a plus h. क्या बोल रही है? ये RHL है. Control your emotions. And if RHL is equal to LHL, then limit exists. If RHL equals to LHL, then we say limit exists. और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f of a के इक्वल है. If RHL
equal to LHL equal to value of the function, then function is continuous. At x is equal to a. तीनों अगर इक्वल में तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है और फंक्शन भी कंटिन्यूअस है. RHL, LHL and the value all three coincides. मतलब you can draw the graph without break. That is continuous. आगे बढ़े. क्वेश्चन करो एक. Find RHL and LHL. If limit x tends to 0, e to the power 1 by x plus 1, e to the power minus 1 by x plus 1. RHL, LHL फाइंड करना है. दोनों को माइनस कर दो. ये माइनस है. फाइंड RHL, LHL. हम्म. RHL, LHL दोनों निकालने हैं. LHL, RHL दोनों फाइंड करने हैं. कौन सा वन होगा कौन सा नहीं मुझे बताओ. तो नहीं. इसको प्रॉपर मेथड से करो. तुम बहुत जल्दबाजी में हो. तो सॉरी, कैंसिल नहीं हो गया. हाँ. अरे क्या? माइनस है ना तुम्हें दिख नहीं रहा है. अब उसको मैंने माइनस कर दिया. कर लो अब. फाइंड LHL, फाइंड RHL. प्रॉपर मेथड से पूरा हर सारे स्टेप्स लेके करोगे तो अच्छा रहेगा. कंटिन्यूटी तुम्हारे बोर्ड में भी है. एक क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर. LHL ए की जगह तुम्हें जीरो दे रखा है. ठीक है. इन प्लेस ऑफ ए वी नीड टू डिस्कस एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए. ए यहाँ पे जीरो है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एच. पहले एक बार फंक्शन एज इट इज लिख दो. सेकंड स्टेप में फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में वेर एवर यू हैव एक्स उसको रिप्लेस कर दो ए माइनस एच से. बिकॉज LHL फाइंड कर रहे हो तुम. इतना आ गया. तो लिमिट एच टेंस टू जीरो e to the power 1 by h plus 1, e to the power 1 by h minus 1. अब जरा लिमिट डाल के देखो क्या हो रहा है. 1/0 कितना होता है. इन्फिनिटी. 1/0 is infinity plus 1 e to the power infinity minus 1. E is a number more than 1. If a number is raised to power infinity and a is more than 1 तो क्या होगा. a की पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी ही होता है. तो ये अभी इस मोमेंट पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है. तो क्या कर सकते हैं. चल भाई हॉस्पिटल करो. क्यों नहीं लगेगा.
ई की पावर वन बाय एच का, अरे यहाँ पे करोगे ना, वहाँ थोड़ी करोगे, तो कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे एच के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है। अरे कर लो। चेन रूल वगैरह सब भूल गई? क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा इस देश का? ई की पावर वन बाय एच का ई की पावर वन बाय एच इंटू वन बाय एच का डेरिवेटिव, एच की पावर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा? तुम बर्बाद हो बिल्कुल। तो दिस इज ई टू पावर वन बाय एच एंड एलॉप, वापस चेन रूल से माइनस वन बाय एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये सारा कट गया, एल एच एल वन आ गया, ठीक है। इसको बिना एलॉपिटल से भी कर सकते थे हम। बिना एलॉपिटल से कैसे होता है ये? कन्वेंशनल मेथड से? नहीं, शॉर्ट, बिल्कुल वन लाइनर। एलॉपिटल अगर यूज नहीं करना है तो ऊपर नीचे ई टू द पावर वन बाय एच से डिवाइड कर दो, ऐसे भी कर सकते थे। ये दिस सेकेंड मेथड। इससे क्या फायदा होगा, ई की पावर वन बाय एच कितना, इन्फिनिटी है, तो वन बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? इस स्टेज हम लिमिट डाल देंगे, तो दिस वुड बी वन प्लस वन बाय इन्फिनिटी, वन माइनस वन बाय इन्फिनिटी, वन प्लस जीरो, वो वन माइनस जीरो, आंसर वन। तो ये बिना एलॉपिटल के भी कर सकते थे। ऊपर नीचे ई टू द पावर वन बाय से डिवाइड कर दिया। अब आरएचएल खुद से करके बताओ मुझे। आरएचएल क्या आ रहा है? हम्म। हम्म। सेम नहीं आएगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। आरएचएल में वी हैव दिस फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच, ए है जीरो, जीरो प्लस एच। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स की जगह जीरो प्लस एच डाल दिया, तो क्या हो गया, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन बाई एच प्लस वन। इसमें जरा लिमिट डाल के देखो क्या आ रहा है। एच को जीरो डालोगे तो क्या आएगा, वन बाई जीरो, वन बाई जीरो इज माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन। ई की पावर इन्फिनिटी को लिखो वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, एंड ई की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। तो जीरो प्लस वन ओवर जीरो माइनस वन, माइनस वन आ गया। आर एच एल इज कमिंग आउट टू बी माइनस वन, एल एच एल वॉज प्लस वन, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको मैंने नॉर्मल कर लिया सॉल्व, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम्म।
लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं तो इंटू एक्स कर दें तो क्या होगा? फिर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। नहीं नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब तुम एक्स टेंस टू जीरो है, 1 इंटू जीरो विल जीरो हो जाएगा, और -1 इंटू जीरो भी जीरो हो जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, RHL LHL दोनों जीरो आ जाएंगे। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन इंटू एक्स होता तो फिर उस केस में क्या होगा, जैसे RHL में क्या हो जाता, RHL में यहाँ पे आता तुम्हारा एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता 0 + h, तो ये h यहाँ रहता, मल्टीप्लाई यहाँ h आता, h जीरो है, एल हॉपिटल थोड़ी लगाया मैंने, वो तो कन्वेंशनल मेथड से कर लिया ना, जीरो हो गया। सिमिलरली तुम्हारा वो वाला भी, जैसे यहाँ पे किया था ना मैंने, यहाँ पे h आ रहा था, 1 इंटू जीरो, ये जीरो है तो नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, -h, हाँ यू राइट, -h होता है, लेकिन वो जीरो तो जीरो ही है। तो फिर वापस, तो उस सिचुएशन में लिमिट एग्जिस्ट करती और इक्वल टू जीरो होता। सर हाँ। सर इस पे एल ऑर्बिटल रूल जब लगा रहे हैं तो इसमें, फिर इस वाले में, इस वाले में हाँ RHL में। इसमें एल ऑर्बिटल नहीं लगाया था मैंने, ये सेकंड मेथड था पहले वाले का। अगर इसमें एल ऑर्बिटल लगाते तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता न्यूमरेटर ओके। में। मैंने इसको कन्वेंशनल मेथड से किया था, e⁻1/h से ऊपर नीचे डिवाइड करके। फिर मैं दूसरे जो साइड में RHL की बात कर रही हूँ। हाँ, उसमें एल ऑर्बिटल लगेगा ही नहीं, क्यों लगाओगे, 0/0 थोड़ी है वो। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं इन्फिनिटी होगा भी वो। नहीं है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी कहाँ है ये तो जीरो होता है, ओके। जीरो। e⁻∞ जीरो, a ओके। to the power minus infinity is basically 1 over a to the power infinity, which is 1 by infinity, which is 0। तो अगर a मोर देन 1 है तो a की पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा 0 होगा, लिख लेना ये। तो एल हॉपिटल तभी यूज होगा जब इट इज 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, a की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, और a की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। ठीक है। तो अगर 1 से छोटी होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? फिर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1 एंड -1 के बीच में होगा, तो आंसर रिवर्स हो जाएगा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट रिवर्स क्लास, जाएगा मतलब? मतलब ए की पावर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा, और ए की पावर प्लस इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी अगली वाली। दिव्या आना है मेरी क्लास में, ठीक है। यस सर। हाँ, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। हम्म।